آج ہم بھول گئے. جس غوث اعظم کا ذکر تم سنتے ہو, جس غوث کا تم تذکرہ سنتے ہو, اس غوث کے خوف خدا کا عالم دیکھیے. شیخ شادی علیہ الرحمہ گلستہ کے دوسرے باب کی دوسری حکایت میں لکھتے ہیں, یہ علماء کرام درس و تدریس سے جڑے ہوئے ہیں, یہ بخوبی جانتے ہیں کہ کوئی صبح کے وقت کعبے کا گلاف پکڑ کر کے رو رہا تھا. رونے کی آواز ایسی درد بھری کہ جو بھی آواز سنے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. لوگ تواس کرتے ہوئے رو رہے تھے. کسی نے, اور رونے والا رو کر کے کہہ رہا تھا, مولا میرے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, میری نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا میری نیکیاں تیری بارگاہ میں قبول نہیں تو قیامت کے دن مجھے نابینا کر کے اٹھانا, قیامت میں مجھے اندھا کر کے اٹھانا. کسی نے پوچھا, او اس طرح رو کے اپنے رب کو منانے والے, ذرا اپنا نام تو بتا دے, تیرا نام کیا ہے؟ تو رونے والے نے کہا تھا, انا عبد القادر جیلانی, میرا نام عبد القادر جیلانی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جسے دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جسے دنیا والے قطب الاقطاب کے نام سے جانتے ہیں. غوث اعظم کی شان, ان کا مرتبہ اعلیٰ حضرت کے شعر سے آپ سمجھ لیجئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اس کو 100 فرد سراپا با فراغت توڑے, اس کو 100 فرد سراپا با فراغت توڑے, تنگ ہو کر جو اترنے کو ہو نیما تیرا. کیا مطلب ہے اس شعر کا؟ اعلیٰ حضرت کی شاعری کے لیے بڑے بڑے علماء کرام کو لغت کا سہارا لینا پڑتا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں میرے اعلیٰ حضرت؟ اس کو 100 فرد سراپا با فراغت توڑے, تنگ ہو کر جو اترنے کو ہو نیما تیرا. یہ علماء اپنی دعاؤں سے نوازیں گے. ایسی غوث اعظم کی میں شان بیان کرنے جا رہا ہوں. خطیب بغدادی کی روایت ہے, ان اکبر الاولیاء بعد صحابۃ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین القطب ثم الامامان ثم الافراد ثم الاوتاد ثم الابدال. اللہ اکبر. صحابہ کے بعد میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ قطب کا ہے. اس کے نیچے اب امامان آتے ہیں جن کو وزیرین کہتے ہیں, ان سے نیچے افراد آتے ہیں, ان سے نیچے اوتاد آتے ہیں, ان سے نیچے ابدال آتے ہیں. یہ ولایت کے درجے ہیں, یہ ولایت کی منزلیں ہیں. سب سے نیچا درجہ ابدال کا ہے, اس سے اوپر اوتاد ہے, اس سے اوپر افراد ہے, اس سے اوپر امامان ہے, اس سے اوپر قطب ہے, اور قطب سے بڑا غوث ہوتا ہے. 70 نقبہ ہوتے ہیں, 70 نجبہ ہوتے ہیں, 100 نقبہ ہوتے ہیں, 40 ابدال ہوتے ہیں, 3 قطب ہوتے ہیں, اور ایک غوث ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو اولیاء کے مراتب بتا دیے. اب سب سے نیچے درجہ جو ہے وہ ابدال کا ہے. ابدال کی شان کیا ہے؟ مولا علی شیر خدا کی ایک روایت ہے کہ فرماتے, میں نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, ملک شام میں 40 ابدال ہیں جن کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے, جن کی وجہ سے بارش ہوتی ہے, جن کی وجہ سے سبزہ اگتا ہے, جن کی وجہ سے دانا اگتا ہے, جن کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے. ارے ایک انتقال کر جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ پہ مقرر کر دیا جاتا ہے. یہ ابدال کی شان ہے جس کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے. اور ابدال سے بڑے اوتاد ہے, اوتاد سے بڑے افراد ہے, افراد سے بڑے امامان ہے, امامان سے بڑا قطب ہے. میرے غوث کی شان تو ذرا دیکھیے. اولیاء کی جماعت میں ایک طبقہ افراد کا ہے. اعلیٰ حضرت الملفوظ شریف کے اندر افراد کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ افراد کا طبقہ ایسا ہے جو خضر علیہ السلام کی نظروں سے چھپ سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی خضر علیہ السلام کی نظروں سے چھپ نہیں سکتا. یہ افراد کا مقام ہے اور افراد کا واحد فرد ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کو 100 فرد سراپا با فراغت توڑے, تنگ ہو کر جو اترنے کو ہو نیما تیرا. نیما چھوٹے سے کپڑے کو کہتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنیے گا, کہتے ہیں اس کو 100 فرد سراپا با فراغت توڑے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو کپڑے بچے کو پہنائے جاتے ہیں, جب 5 سال کا ہو جائے گا وہ لباس اس کے بدن پہ نہیں آئے گا. جو 5 سال میں لباس بچے نے پہنا, جب 10 سال کا ہو جائے گا تو 10 سال کی عمر میں وہ لباس اس کے بدن پہ نہیں آئے گا جو 5 سال میں اس نے پہنا تھا. جو لباس 10 سال کی عمر میں پہنا, جب 20-25 سال کا ہو جائے گا تو وہ لباس چھوٹا ہو جائے گا, اس کے بدن پہ نہیں آئے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کو 100 فرد سراپا با فراغت توڑے, تنگ ہو کر جو اترنے کو ہو نیما تیرا. مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم نے جو لباس ولایت بچپن میں اتار دیا ہے اسے 100 افراد کو بھی پہنا دیا جائے تو وہ چھوٹا نہیں پڑے گا بلکہ پورا ہو جائے گا. اس کو 100 فرد سراپا با فراغت توڑے, تنگ ہو کر جو اترنے کو ہو نیما تیرا. نعرہ تکبیر,
नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, ऐ गौसे आज़म शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा। ये है गौसे आज़म, फिर भी खौफे खुदा का ये आलम कि आप काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहे हैं। पूछने वाले ने पूछ लिया, ये क्यों कह रहे हो कयामत में नाबीना करके उठाना? तो कहते हैं कयामत में नबीयीन होंगे, सिद्दीकीन होंगे, शुहदा होंगे, स्वालिहीन होंगे। अगर मेरी नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं तो अब्दुल कादिर कैसे उनके सामने खड़ा होगा? अल्लाह अकबर। ये है गौसे आज़म जो 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाते। 40 साल इस हाल में गुजारे गौसे आज़म ने, इशा में वुजू फरमाते, पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते, फजर की नमाज उसी वुजू से आप अदा फरमाते। 15 साल उसी में ऐसे गुजारे कि एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा करते, लकड़ी का सहारा लेकर के पूरी रात कुरान की तिलावत करते और पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। ये गौसे आज़म है। न नमाजों का सवाब की कमी है इनके पास, न रोजों के सवाब की कमी है इनके पास, फिर भी रब की बारगाह में रो रो के अर्ज कर रहे हैं, मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आला हजरत कहते हैं, करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को ना शर्मा, तू रजा से हिसाब लेगा, रजा भी कोई हिसाब में है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से नकाब में है। ये गौसे आज़म है जो बचपन से तालीम हासिल कर रहे हैं। अभी विलायत का ऐलान नहीं किया गौसे आज़म ने, अभी नहीं बताया कि मैं वलियों का सरदार हूं, पहले मदरसा पढ़ने के लिए गए। पता चला तहजीब मिलती है तो मदरसे से मिलती है, तमद्दुन मिलता है तो मदरसे से मिलता है, अखलाक मिलता है तो मदरसे से मिलता है, माँ बाप का अदब कैसे किया जाता है ये सबक मिलता है तो मदरसे से मिलता है, बड़े भाई का अदब क्या है ये सबक मदरसे से मिलता है, छोटों पे कैसे शफ़क़त की जाती है ये सबक मदरसे से मिलता है, रिश्तेदारों का क्या रिश्तेदारी रखने का क्या सवाब है ये सबक मदरसे से मिलता है, पड़ोसियों के क्या हुकूक है ये सबक मदरसे से मिलता है। तो अपने बच्चों को मदरसा भेजो, अपने बच्चों को दीनी तालीम के लिए मदरसे की जानिब रुख कराओ। पहले अपने मजहब की तालीम दो, पहले अपने शरीयत की तालीम दो, फिर उसके बाद चाहे बच्चों को डॉक्टर बनाओ चाहे इंजीनियर बनाओ। कुरान और हदीस की तालीम उसके सीने में होगी, जब बच्चा जो है तुम्हारा कुरान और हदीस पढ़े हुए होगा, डॉक्टर भी बन जाएगा तो वो डॉक्टर नहीं बनेगा जो मेडिकल वालों से कमीशन खाता हुआ फिरे, और डॉक्टर भी बन जाएगा तो वो नहीं बनेगा जो जांचें कराने के भी पैसे लिया करे, साइड से उसके पास अलग से पैसे आए, वो डॉक्टर नहीं बनेगा जब कुरान और हदीस की तालीम उसके पास में होगी तो वो गरीबों की मदद करता हुआ नजर आएगा, बेचारों की मदद करता हुआ नजर आएगा, वो काम करेगा जिससे उसका अल्लाह राजी हो जाए, उसका रसूल राजी हो जाए। इसलिए पहले अपने मजहब की तालीम दो अपने बच्चों को, कहीं ऐसा ना हो कि मदरसे का रुख ना कराया और इस दुनिया से चले गए तो वो बच्चे जो कुरान की तिलावत भी करके आपके लिए ईसाले सवाब न कर सके। इस हाल में दुनिया से मत जाना, बल्कि इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे उधर बराबर में बैठ करके बच्चे सूरह यासीन की तिलावत करते हुए नजर आए, कुरान पढ़ते हुए नजर आए। और जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहा जाएगा, लहित में इश्क रुखे शहर का चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वाह, अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि गौसे आजम पहले मदरसा गए, पहले आपने तालीम हासिल की और कितना इल्म हासिल किया, 18 साल कस्बा जीलान के पूर्व जवार में तालीम हासिल करते रहे। उसके बाद अपनी माँ से कहते, अम्मी अब इजाजत दे दो, मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। माँ की उम्र 78 साल की हो गई है। उस वक्त माँ ने अपने एहसान नहीं गिनाए, बेटा मैंने तुझे 9 महीने अपने शिकम में रखा, मेरे लाल मैंने तुझे जन्म दिया, मेरे लाल मैंने तुझे 2 साल अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में तुझे पिलाया, अब तू मुझे छोड़ के जा रहा है। माँ ने अपने एहसान नहीं गिनाए। अल्लाह अकबर, माँ के एहसान कितने हैं, बाप के एहसान कितने हैं। औलाद पूरी जिंदगी माँ बाप की खिदमत करे तब भी माँ बाप के एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। आज वो औलाद क्या जाने जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या जाने कि मेरे बाप ने मेरे लिए कौन सी कुर्बानी दी है।
मेरी माँ ने मेरे लिए कौन सी कुर्बानी दी है। उसे क्या पता कि उसकी माँ रातों में कितनी रातों में उसके सरहाने बैठ करके जागी है। याद रखना माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत, ये उर्से पाक में आप आए हो, यही पैगाम ले जाओ और मैं अपनी जगह आराम से बैठ जाऊं। याद रखो माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत, जिस दिन ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। माँ के कितने एहसान हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी ने आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपनी पुश्त पे बिठा करके काबे का तवाफ कराया है, क्या मैंने अपनी माँ के एहसानों का बदला चुका दिया? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तेरी पैदाइश के वक्त जो तेरी माँ को दर्द उठे थे उन दर्दों में से अभी एक दर्द का तूने बदला नहीं चुकाया है। अल्लाह अकबर। पूरी जिंदगी हम माँ की खिदमत करते रहे तब भी माँ के एहसानों का बदला नहीं चुका सकते। पूरी जिंदगी हम बाप की खिदमत करते रहे तब भी हम बाप के एहसानों का बदला नहीं चुका सकते। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले अल्लाह ताला जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है, और एक का इंतकाल हो गया है, जो मौजूद है उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह ताला जन्नत का 1 दरवाजा खोल देता है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यमन के नौजवान सहाबी आके अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैं यमन से आया हूँ, अब वापस अपने शहर नहीं जाना चाहता, जितनी जिंदगी बची है मदीने में गुजारूंगा, मेरा इंतकाल हो गया तो मदफन मदीने में बनेगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हल लका अबवाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा है, क्या तुम्हारे माँ बाप हयात हैं? सहाबी ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, माँ बाप तो जिंदा है। नबी इरशाद फरमाते, क्या इजाजत लेकर आए हो, क्या माँ बाप से पूछ कर आए हो? अर्ज करते, हाँ या रसूल अल्लाह, माँ बाप से पूछ करके आया हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये बताया तुमने कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज करते, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने ये भी बताया है। मेरे आका इरशाद फरमाते, जब तुमने ये कहा कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, जब मैंने अपने माँ बाप से ये कहा कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो मेरे माँ बाप गले लग के फूट फूट करके रो रहे थे। मेरे आका तशरीफ फरमाते, जलाल में आगे उठ के खड़े हो गए। इरशाद फरमाते हैं, इरजी इलैहिमा फअदहिबहुमा कमा अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है, आज माँ बाप एक एक पैसे के खर्चे के लिए परेशान है, और बेटा 3-3 हजार के टिकट खरीद करके फिल्में देखने जा रहा है, होटलों में जाकर के वेटरों को टिप दे करके आ रहा है। अल्लाह ताला कुरान के दूसरे पारे में फरमाता है, सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए, खर्चा सबसे बेहतर वो है जो माँ बाप को दिया जाए। याद रखना प्यारे मुसलमानों, माँ बाप दुनिया में अगर हयात है और हाथ उठा के दुआ कर दे, अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप की दुआ को ऐसे कबूल फरमाता है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। आज हम दुआ कराते फिर रहे हैं। मैं बरेली शरीफ से आया, मौलाना साहब हमारे लिए दुआ कर देना। सैयद मुकीमुर रहमान साहब बरेली शरीफ से आए, कहा हजरत हमारे लिए दुआ कर देना। एहसान शाकिर साहब आए, कहा हजरत हमारे लिए दुआ कर देना। अकरम भाई जलालपुर से आए, हजरत हमारे लिए दुआ कर देना। हम दुआ कराते फिर रहे हैं लेकिन दुआ लेते नहीं है। इतनी जल्दी किसी मौलाना की दुआ कबूल नहीं होगी, इतनी जल्दी किसी पीर की दुआ कबूल नहीं होगी, इतनी जल्दी किसी शायर की दुआ कबूल नहीं होगी, जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। दुआ लेनी है तो माँ बाप से लो, दुआ करानी है तो माँ बाप से कराओ। माँ बाप हाथ उठा के दुआ कर देंगे, अल्लाह ताला उनकी दुआ को बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये माँ बाप है, इसका पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी। हमारे बुजुर्गों ने कहा, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है।
बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेले होठों को खुश्क कर देते हैं, उस वक्त सबसे बेहतर और मुनासिब साया दरख्त का साया माना जाता है। आदमी कितनी भी गर्मी पड़ती हो, पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे आराम मिल जाता है, उसे सुकून मिल जाता है। और पेड़ के पत्ते धूप में तोड़ करके देखना, पेड़ के पत्ते ऊपर से गर्म आपको मिलेंगे, पेड़ के पत्ते ऊपर से तप रहे होते हैं, लेकिन नीचे बैठने वालों को छांव पहुंचाते हैं, नीचे बैठने वालों को आराम पहुंचाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ गिर जाएगा उस दिन धूप भी परेशान करेगी, उस दिन बारिश भी परेशान करेगी, उस दिन गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है जो खुद तो धूप में जलता रहता है, अपनी औलाद को साया पहुंचाता है, अपनी औलाद को छांव पहुंचाता है। ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी न कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन ये बाप की चारपाई घर से उठ गई, जिस दिन माँ की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढते फिरोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेगी। आज बेटा चार पैसे क्या कमाने लगा, थोड़ी सी दौलत उसके पास क्या आ गई, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया, खुद के कमरे में एसी चल रहा है, खुद के कमरे में कूलर चल रहा है, जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम है। और माँ बाप है कि तीनों और झोपड़ियों में रह करके पुराने कपड़े पहन करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? हम कौन सा मुंह लेके जाएंगे महबूबे टावर के सामने, हम कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे शाफ़े महशर के सामने? कयामत के दिन मेरे आका ने हमसे पूछ लिया, बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, क्या सलूक करके आए? क्या कहेंगे उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए? क्या कहेंगे उन्हें टीनों में रहने पे मजबूर करके आए? क्या जवाब देंगे उन्हें झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए? माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। याद रखो माँ बाप की दुआ से बुलंद रुतबा मिलता है, माँ बाप की दुआ से बुलंद शान मिलती है। हजरत बायजीद बुस्तामी को नहीं देखते, अल्लाह तबारक व तआला ने जो मकाम हुजूरी अता फरमाया है वो माँ की दुआओं के वसीले से अता फरमाया है। बड़े बड़े औलिया इकराम को जो मर्तबे मिले वो माँ बाप की दुआओं से मिले हैं। याद रखो माँ बाप हाथ उठा के दुआ कर दे, अल्लाह ताला नसीबे सवार देता है, अल्लाह ताला किस्मतें सवार देता है। घर में वालिद है, घर में वालिदा बैठी है, उनके पास जाकर के आज दुकान में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआ कराओ, कारोबार में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआ कराओ, घर में परेशानियां आ गई है तो माँ बाप से दुआ कराओ, मुसीबतों ने तुम्हें घेर लिया है तो माँ बाप से दुआ कराओ, क्योंकि मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है मेरी माँ, मेरे दामन में दुआएं देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। बेशक बेशक बेशक, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। घर में बैठ के इंतजार करते, काश मेरा छोटा बेटा मुझसे बात कर लेता, काश मेरा मंझला बेटा मुझसे बात कर लेता, काश मेरा बड़ा बेटा मुझसे बात कर लेता। आज हम माँ बाप से बात नहीं करते। आज अगर बेटों का हाल इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबको नहीं कहता, कुछ वफादार बेटे हैं, लेकिन आओ मैं आपको बताऊं आज हालात ऐसे बन गए कि आदमी बाहर से कोई खाने पीने का सामान लाता है तो ऐसे माँ बाप से छुपा के घर में लेके जाता है कि कहीं मेरे वालिद की नजर न पड़ जाए, कहीं मेरी माँ की नजर न पड़ जाए। वो तुम्हारे खाने पीने की चीजों के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि वो अपने बच्चे की सलामती के लिए हमेशा दुआ करते रहते हैं, मौला मेरे बेटे को सलामत रखना। बेटा बाहर दुबई काम करने चला जाए, माँ बाप को चैन नहीं मिलता जब तक अपने बेटे से एक बार बात नहीं कर लेते। माँ फोन पे पूछती मेरे बेटे तूने खाना खाया? जब बेटा कहता है हाँ खाना खाया, तब माँ के हल्क से नीचे लुकमा उतरता है। बाप भी बिस्तर पे करवटें बदलता रहता है और बेटा है कि दोस्तों के साथ जाकर के रातों में घूमता नजर आता है। माँ फोन करके पूछे मेरे लाल अभी तक क्यों नहीं आए, तो कहता है माँ क्यों मुझे फोन करके परेशान करती है, मेरे भी शौक और अरमान है, मैं दोस्तों के साथ घूमने निकला हूँ। आज ये बात कह के तुमने फोन तो काट दिया माँ का ना, लेकिन याद रखना एक दिन ऐसा आएगा कि कोई तेरी खैरियत पूछने वाला तक नहीं होगा, कोई तुम्हारे हालात मालूम करने वाला तक नहीं होगा। आज हर एक के मशवरे में आपको मतलब मिलेगा, दोस्तों के मशवरे में भी मतलब है, रिश्तेदारों के मशवरे में भी मतलब मिलेगा, खानदान वालों के मशवरे में भी आपको मतलब मिलेगा। बगैर मतलब
मतलब और बिगैर लालच के अगर कोई मोहब्बत करता है तो वो हमारे बूढ़े माँ बाप है। जिस बाप की आज खांसी हमें अच्छी नहीं लगती, जिस माँ का आज बोलना हमें अच्छा नहीं लगता, जिस दिन ये चारपाई घर से उड़ जाएगी उस दिन हम आंसू बहाते हुए फिरेंगे, हम दुआ कराने के लिए इधर उधर दौड़ते हुए फिरेंगे। याद रखना, माँ बाप जब तक जिंदा है उनकी खिदमत कर लो, माँ बाप जब तक हयात है उनकी खिदमत करके अपना नाम जन्नतियों की फहरिस्त में लिखा लो। कुरान मेरा फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। हुक्म दिया तेरे माँ बाप ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो। कब? जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए। फला तकुल लहुमा उफ़, तो उन्हें उफ़ भी मत कहना, व कुल लहुमा कौलन करीमा। जब भी बोलना तो मोहब्बत से बोलना, जब भी बोलना तो प्यार से बोलना, जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ में बोलना। अल्लाह अकबर। ये कुरान हमें माँ बाप से बात करने का सलीका बता रहा है, माँ बाप के साथ कैसे रहना है ये सबक हमें कुरान दे रहा है। हमारे उलमा फरमाते हैं माँ बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे गुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे एक नौकर अपने मालिक से बात करता है। इस तरह से हमें माँ बाप से बात करनी चाहिए। उन्हें झिड़कना नहीं है, उनसे तेज तर्रारी से बात नहीं करनी है, उनके सामने जुबान दराजी नहीं करनी है। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसका पता हमें तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं, जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि हमारे बाप ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां पेश की हैं। आज हमारी औलाद को रात में बुखार आ जाए, हमारी रात की नींदें उड़ जाती हैं, हमें रात में नींद नहीं आती, हमारी आंखों की नींदें गायब हो जाती है। एक दिन मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे बच्चे को एक रात में बुखार आ गया, रात में जलसा करके आया, सो गया था, नींद आ गई 3 बजे के बाद में बहुत गहरी वाली। बीबी ने अचानक से कहा बेटे को बहुत तेज बुखार है। मैं उठ के बैठ गया, आंख की नींद कहां चली गई पता ही नहीं चला। दवा खिलाई, उसे आराम तो हो गया, लेट गया, बच्चा तो सो गया। मुझसे कहा आप भी सो जाइए। मैंने कहा नींद नहीं आ रही, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार है। मैं सोच में पड़ गया, फुरकान आज हमारे बच्चे को एक रात बुखार आ गया तो हमारी रात की नींदें उड़ गई। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितनी रातें कुर्बान की होंगी, हमारे माँ बाप हमारे लिए कितनी रातें बैठ करके जागे होंगे। आज हम ये कुर्बानियां भूल गए माँ बाप की। आज हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितनी परेशानियां उठाई, ये हम सारी परेशानियां हमने फरामोश कर दी। याद रखना नौजवानों, कभी तुम्हें ये लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो वालिद के सामने बैठ के उसके पेशानी पे पड़ी हुई झुर्रियां देख लिया करो, उसके गालों में पड़ी हुई झुर्रियां देख लिया करो, उसके सिमटी हुई हाथ की खाल देख लिया करो, उसके हाथ की लकीरें देख लिया करो। एक दिन मैंने पूछा अपने अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही है, तुम्हारे हाथ की लकीरें कहां चली गई? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। आज वो औलाद क्या जाने जो घंटों बाप के पास बैठी रहती है और मोबाइल तो चलाती रहेगी लेकिन माँ बाप से बात तक करने की तौफीक नहीं होती। देखो बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। कभी तुम्हें लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाया करो सादुल्ला नगर की तरफ, चले जाया करो रात में 2-3 बजे बलरामपुर की तरफ, चले जाया करो गोंडा की तरफ, चले जाया करो शहर और कस्बे की तरफ। अरे ये रात के 3-3 बजे बस लेकर के रोड पे खड़ा होने वाला ये एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला ये एक बाप ही तो है, ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला ये एक बाप ही तो है। ऐसी शिद्दत की गर्मी में पूरे दिन ठेला लगा करके रोड पे धूप में खड़ा होने वाला ये एक बाप ही तो है। अरे प्यास लगती मस्जिद की टंकी से पानी पीता, कोई कहता 20 रुपए की बोतल मिल रही बराबर दुकान में क्यों नहीं पी लेते, कहता 20 रुपए बच जाएंगे, मेरे बच्चों की तालीम में काम आएंगे, मेरे बच्चों के खर्चे में काम आएंगे। अल्लाह अकबर। ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है, अरे ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, ये इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, ये मास्टर बनाने वाला एक बाप है, ये प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला ये एक बाप ही तो है, ये बंबई कमाने के लिए जाने वाला 6-6 महीने में वापस आता है, ये एक बाप
बाप ही तो है ये दिल्ली कमाने जाने वाला, ये एक बाप ही तो है ये बेंगलोर कमाने जाने वाला, ये एक बाप ही तो है। बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, इसका पता हमें तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं, जब खुद की औलाद होती है ना, जब उसकी तबीयत खराब हो जाए। हम सादुल्ला नगर के डॉक्टर को दिखाते, वहां फायदा नहीं होता, बलरामपुर लेकर के भागते, वहां के डॉक्टर से फायदा नहीं होता, दौड़ के गोंडा बहराइच लेकर के जाते, वहां के डॉक्टर से फायदा नहीं होता, लखनऊ दिल्ली एम्स वगैरह में लेकर के जाते। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, सरमाया बिके तो बिक जाए, अरे घर बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। यही मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये बड़ी मन्नतों के बाद मेरे घर में आया है, पैर की जूतियां घिस गई, आलिमों के पास चक्कर लगाते हुए दुआ कराते हुए, तब मेरे घर में ये फूल खिला है। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। आज हमारी औलाद बीमार पड़ गई, आज हमारे बच्चे को हल्का सा बुखार क्या आ गया, हमारी रात की नींदें उड़ गई। कभी सोचा है 30-35 साल पीछे पलट के जाओ, इन बुजुर्गों से आप पूछो, ये आपको बताएंगे कि जब बचपन में हम बीमार पड़े थे, यही हमारा बूढ़ा बाप जिसकी आज हमें खांसी अच्छी नहीं लगती, बारिश आ गई छाता अपने बच्चे पे कर दिया, खुद तो बारिश में भीगता चला गया, लेकिन अपनी औलाद को भीगने नहीं दिया। रास्ते में नदी आ गई, बच्चे को ऊपर उठा लिया, खुद तो भीगता हुआ चला गया, लेकिन अपने बच्चों को भीगने नहीं दिया। यही माँ जिसका आज बोलना हमें अच्छा नहीं लगता, इसने सर्दी में कोहरे में खुद तो ठिठुरती ही रही, लेकिन अपनी चादर अपने बच्चे को उड़ा करके सीने से लगा करके ले गई, मेरे बच्चे को सर्दी ना लग जाए, मेरे बेटे को सर्दी ना लग जाए। आज वही औलाद जवान हुई, 4 पैसे क्या कमाने लगी, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। याद रखना प्यारे मुसलमानों, मौलाना रूम फरमाते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ में भलाई नहीं की है तो ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि बुढ़ापे में तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। शायर पुकार के कहता है, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने दे। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। भाई बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। अल्लाह ने पूरे कुरान में, उलमा तशरीफ फरमा है, मदारिस इस्लामिया से जुड़े हुए हैं, दर्स तदरीस से जुड़े हुए हैं, इल्म में मुझसे ज्यादा है। आप इनसे पूछिए, ये आपको बताएंगे कि पूरे कुरान में जहां जहां अल्लाह ने अपने हुकूक बयान फरमाए हैं, वो जब हुकूकुल इबाद का मामला आया है तो सबसे पहले अल्लाह ने माँ बाप के हुकूक बयान फरमाए। अल्लाह ने अपने हुकूक के बाद में माँ बाप के हुकूक बयान फरमाया। अल्लाह के हुकूक अदा करने के बाद जब बंदों के हक अदा करने का मामला आता है तो सबसे पहले माँ बाप को रखा। माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। इसका पता हमें तब चलता है जब ये सारे हमारे सर से उड़ जाते हैं। बाप जब तक जिंदा रहता है, माँ जब तक जिंदा रहती है, इल्ला माशाअल्लाह औलाद अपने माँ बाप से खाने पीने का सामान छुपा के रखती है।
لیکن دیکھا ہے ہم نے اسی ماں کا یا باپ کا انتقال ہو جائے، میں ایصال ثواب کا منکر نہیں ہوں، آپ دوسری طرف مت چلے جانا، میں خود الحمدللہ ایصال ثواب کرتا ہوں، مگر افسوس تب ہوتا ہے جب باپ زندہ تھا، ماں زندہ تھی، تب تو کھانے پینے کے لیے لا کر کے ان کے سامنے ایک سیب کا ایک قطرہ بھی نہیں رکھا، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو تیجے کی فاتحہ میں شاید کوئی ایسا پھل ہو جو اس کی نظر سے چھپ گیا ہو جو لا کے نہ رکھا۔ ایصال ثواب کرو کہ ثواب ملے گا۔ کیا اچھا ہوتا کہ جب باپ زندہ تھا اس کے پاس بیٹھ کے محبت سے سیب کاٹ کے اپنے ہاتھ سے اپنے والد کے منہ میں رکھ دیتے، اور ابا اس کو کھاتے ہوئے جو دعا دیتے نا، سچے دل سے جو دعا نکلتی نا ان کے دل سے، اتنی برکت ہوتی کاروبار میں کہ نسلیں کھاتی تب بھی وہ پیسہ ختم۔ بے شک بے شک۔ ماں کے پاس ایک بار بیٹھ کر کے اس کے قدموں کو دبا کے تو دیکھو کیا مرتبہ ملتا ہے، کیا مقام ملتا ہے۔ سکون تلاش کرتے پھر رہے، سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے۔ جس گھر میں ماں باپ پریشان ہوتے اللہ اس گھر سے سکون اٹھا لیتا ہے، اللہ اس گھر سے سکون رحمت اٹھا لیتا ہے، برکت اٹھا لیتا ہے۔ ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت، یہ غوث اعظم ہے۔ اپنی والدہ سے جب اجازت لیتے تو ماں نے اپنے احسان نہیں گنائے تھے، بیٹا مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، 78 سال کی عمر ہے، ماں کی کتنی ضرورت ہوگی ماں کو۔ والد کا سایہ تو غوث پاک کے پہلے ہی سر سے اٹھ گیا جب آپ 14 سال کے تھے۔ غوث اعظم کی والدہ نے کہا جا میرے لال تو علم حاصل کر۔ آپ بغداد آئے، تعلیم حاصل کی۔ غوث اعظم نے علم حاصل کرنے کے بعد میں جو پریشانیاں اٹھائی ہیں نا، اگر وہ پریشانیاں آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ میرے غوث فرماتے میں کئی دن فاقے سے رہتا تھا، درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتا، درختوں کی چھالیں کھا کر کے گزارا کرتا۔ یہ علماء کرام ایسے ہی نہیں بن جاتے، یہ عالم ایسے ہی نہیں بن جاتے۔ کبھی مدرسے کی تاریخ اٹھا کر کے تو دیکھ لینا، کبھی مدرسے کا کھانا تو جا کر اب تو بہت اچھا کھانا مل رہا ہے، ہم تو عمدہ سے عمدہ کھانا مل رہا ہے، اب تو دعوتوں کا بہت اچھا انتظام ہو گیا ہے۔ جتنے جلسے آج ہو رہے ہیں نا اتنے جلسے پہلے نہیں ہوئے، جتنی نیاز آج ہو رہی ہے نا اتنی پہلے نہیں ہوتی۔ اب تو پورا مہینہ 11ویں شریف میں امام صاحب 2 3 میلادیں روز پڑھتے ہیں، پہلے اتنا نہیں تھا ماحول۔ لیکن کبھی سوچا ہے آپ ان سے پوچھنا اس دور میں کیسے مدرسے کا کھانا ہوا کرتا تھا؟ یہ کھا کر کے مدرسے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر کے علم حاصل کیا ہے۔ ایک مسئلہ سمجھنے کے لیے کئی کتابوں کا سہارا ان کو لینا پڑتا تھا، تب کہیں جا کر کے وہ مسئلہ ذہن میں بیٹھتا تھا۔ اور آج کا عام انسان کھڑے ہو کے کہہ دیتا ہے مولویوں کو کیا پتا، مولویوں کو کیا معلوم۔ بخاری شریف سے لے کر کے منطق، فلسفہ جیسی کتابیں یہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے، یاد کر لیتے ہیں۔ اور یہ صاحب جنہوں نے کبھی مدرسے کا رخ نہیں کیا، کبھی اسکول کا چہرہ نہیں دیکھا، یہ کہتے ہیں مولویوں کو کیا پتا۔ ارے تم کو کیا پتا، یہ علماء کرام وہ ہیں جس دن یہ عالم چلے گئے نا، جس دن یہ علماء چلے گئے نا، اس دن تم کو دیکھنا مسلح پہ کھڑے ہونے والا عالم تک نصیب نہیں ہوگا۔ جس دن یہ مدرسے بند ہو گئے نا اس دن ترسوں کے مسلح پہ کھڑا کرنے کے لیے امام کو۔ اس لیے مدرسوں کو مضبوط کرنا، علاقوں میں دیکھنا مدرسوں میں کہاں ضرورت ہے۔ مدرسے مضبوط ہوں گے، عالم جب تمہاری بستیوں میں ہوں گے۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ بستی مردوں کی بستی ہے جس میں نبی کی شریعت کا ایک عالم نہ ہو، نبی کی شریعت کا ایک عالم نہ ہو، اس بستی کو مردوں کی بستی بتایا ہے۔ تو علم حاصل کرتے وقت کتنی پریشانیاں آتی ہیں۔ پیران پیر روشن ضمیر کہتے ہیں ایک دن بھوک نے زیادہ پریشان کیا تو میں کرخ کے خنجرات کی طرف چلا گیا، میں نے سوچا کوئی مباح چیز مل جائے گی اٹھا کے کھا لوں گا۔ پہنچے تو وہاں 40 فقیر اور بھوک بھوک چلا رہے تھے، واپس آ گئے، مسجد میں آئے، نماز ادا کرنے لگے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک مسافر کھانا کھا رہا تھا، دل میں خیال آیا کاش یہ مجھے کھانے میں شریک کر لیتا۔ میرے غوث سے اس نے کہا آئیے بیٹا بیٹھو کھانا کھا لو۔ آپ بیٹھے تو اس نے کہا کہاں پڑھتے ہو؟ کہا میں مدرسہ نظامیہ میں پڑھتا ہوں۔ کہا بیٹا مدرسہ نظامیہ میں قصبہ جیلان کے سادات گھرانے، محلہ نیف کے سادات گھرانے کا ایک بچہ پڑھتا ہے جس کا نام عبد القادر ہے۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا میں جب اسی کے محلے کا رہنے والا ہوں، آ رہا تھا، اس کی ماں نے تھوڑا سا سونا دے کے کہا تھا میرے بچے کو بغداد میں دے دینا، وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ میں کئی دن سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں لیکن وہ بچہ مجھے نہیں ملا۔ میرے غوث نے فرمایا عبد القادر میں ہی ہوں۔
मेरा ही नाम अब्दुल कादिर है। वो हाथ जोड़ के कहता है माफ कर देना बेटा, मैंने तुम्हारा थोड़ा सोना बेच करके ये खाना लेकर आया हूँ। ये गौसे आजम है, ये गौसे पाक है, जिनका दिल भी माइल होता है तो अपने ही खाने की तरफ माइल होता है। दौराने तालिब इल्मी आपने परेशानियां उठाई, आपने मुसीबतों के पहाड़ अपने ऊपर तो बर्दाश्त कर लिए, लेकिन इल्म हासिल किया और इतनी तालीम हासिल की, अल्लाह ने वो मकाम भी आपको अता फरमाया कि एक दिन आपने ये कसम खाई कि तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह दस्ते कुदरत से नहीं खिलाएगा। आपके पीरो मुर्शिद हजरत अबू सईद मखदूमी अलैहिर्रहमा तबाक में खाना लेकर आए, अब्दुल कादिर ये खाना खा लो। आपने खाने को हाथ नहीं लगाया, आपके कानों में आवाज आती है या अब्दुल कादिर जिलानी बिहक़्क़ि अलैका कुल व बिहक़्क़ि अलैका इश्रिब। हे अब्दुल कादिर जिलानी, तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू खा ले, तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू पी ले। आला हजरत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं कसमें दे दे के पिलाता है तुझे, कसमें दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, वो शान मिली गौसे आजम को। अब मेरी तकरीर का इख्तिताम, वो मर्तबा मिला गौसे आजम को। आपने इल्म हासिल किया, तालीम हासिल की और कितने बड़े आलिम बने, कितने बड़े मुफ्ती बने मेरे गौसे आजम। तारीख उठा करके देखो, गौसे आजम के खानकाह में 500 फतावा रखे रहते थे। गौसे आजम उन फतावा का जवाब देते थे। एक दिन में 13 उलूम पढ़ाते थे गौसे आजम। आज आदमी एक सब्जेक्ट में पीएचडी कर लेता है, 3 सब्जेक्ट में आदमी बीए कर लेता है, 2 सब्जेक्ट में आदमी एमए कर लेता है। गौसे आजम एक दिन में 13 उलूम पढ़ाते थे। ये उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है। कितने साल? 40 साल मदरसे में बैठ करके मेरे गौस ने पढ़ाया है। हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिब इल्म आलिम फादिल बनकर के निकला करते थे। ये उलमा की दुआएं लेकर के 1,20,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाया। 1,20,000 आलिम गौसे आजम ने दिए इस कौम को। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में जो मुजाहिदीन थे उनमें अक्सर गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए आलिम दीन थे। कुछ हजरत इमाम गजाली के मदरसे के पढ़े हुए थे, कुछ शेख कबीर अहमद रिफाई के मदरसे के पढ़े हुए मुजाहिदीन थे। ये हैं गौसे आज़म जिनके मदरसे के पढ़े हुए मुजाहिदीन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में शामिल थे, जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस मक़दिस को फतह किया था, जिन्होंने बैतुल मक़दिस के ऊपर इस्लाम का परचम बुलंद किया था, जिन्होंने सलीबियों का कब्जा वहां से हटाया था। उनको मौत आती है तो बिस्तर पे आती है, जब दुनिया साहिरी से तशरीफ ले जाते हैं तो बिस्तर पे लेटते हुए जाते हैं। किसी ने पूछा ए सलाहुद्दीन अय्यूबी, पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे, पूरी जिंदगी जंगे लड़ते रहे, जिस्म पे आपके तलवारों के निशान भी है, जिस्म पे आपके नेज़ों के निशान भी है, जिस्म पे आपके बर्छी और भालों के निशान भी मौजूद है। आपकी गर्दन किसी तलवार से क्यों नहीं कटी? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं दुनिया में कोई ऐसी तलवार बनी ही नहीं है जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काट दे। कहा किस बिना पे कहते हो? कहा इसलिए कि जब बचपन में मेरे वालिद नजमुद्दीन अय्यूब मुझको गौसे आज़म की बारगाह में लेकर गए, कहा हुजूर दुआ कर दो बेटे के लिए, तो गौसे आज़म ने मेरी गर्दन पे हाथ रख के फरमाया ये बच्चा मुजाहिद इस्लाम है, ये बच्चा फातिह इस्लाम है, ये मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मक़दिस को फतह करेगा। कहा जिसकी गर्दन पर गौसे आज़म हाथ रख दे उसकी गर्दन को कोई तलवार काट नहीं सकती है। क्या करे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या करे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आह क्या मर्तबा गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। गौसे आज़म ने तालीम हासिल की, मदरसे में बैठ करके पढ़ाया गौसे आज़म ने, वो मकाम भी दिया। खुद गौसे आज़म फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्फ तो कुतुबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है,
بلند مقام علم سے ملتا ہے، بلند عظمت علم سے ملتی ہے۔ غوث اعظم نے علم کے ذریعے، حضور حافظ ملت فرماتے ہیں اسلام کی خدمت کرنے کے 3 نمایاں طریقے ہیں۔ اسلام کی خدمت کرنے کے 3 نمایاں طریقے ہیں، تدریس کے ذریعے، تصنیف کے ذریعے، تقریر کے ذریعے۔ تدریس کے ذریعے مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھایا جاتا ہے، اس سے اسلام کی خدمت ہوتی ہے۔ تصنیف کے ذریعے کتابیں لکھ کر کے اسلام کی خدمت ہوتی ہے۔ تقریر کے ذریعے اسلام کی خدمت ہوتی ہے۔ غوث اعظم کو دیکھو، تدریس کے ذریعے بھی اسلام کی خدمت کی، تصنیف کے ذریعے بھی اسلام کی خدمت کی، اور تقریر کے ذریعے بھی آپ نے اسلام کی خدمت کی۔ جس سے اسلام کو فائدہ پہنچے، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، وہ طریقہ آپ نے اپنایا، اسی لیے آج دنیا ان کو یاد کرتی ہے، اسی لیے دنیا آج ان کا خطبہ پڑھ رہی ہے، اسی لیے گھر گھر میں غوث کے نام کی محفلیں سجی ہوئی ہیں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے، وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ اللہ والوں نے فائدہ پہنچایا، ان ولیوں نے نفع پہنچایا، لوگ آج ان کو یاد کر رہے ہیں، لوگ آج ان کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، لوگ آج ان کا چرچا کر رہے ہیں۔ تو نفع پہنچاؤ، فائدہ پہنچاؤ۔ اس حال میں دنیا سے نہ جانا کہ کوئی کہے کہ یہ لوگوں کا حق مار کے جا رہا ہے، اس حال میں دنیا سے جانا کہ لوگ کہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے۔ لوگ گانے سنتے تھے، فلمیں دیکھ کے دل بہلاتے تھے، یہ نبی کی نعتیں سن کر کے، قرآن کی تلاوت سن کر کے دل بہلاتا تھا، یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے۔ امام صاحب بھی کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں گے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دو